آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وٹ آر دی سب فیلڈز آف پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس کے سب فیلڈ کون کون سے ہیں اور کیوں ضرورت پڑی پولیٹیکل سائنس کو سب فیلڈ میں ڈیوائڈ کرنے کے. سو پولیٹیکل سائنس از ڈیوائڈیڈ انٹو سب فیلڈس. پولیٹیکل سائنس جو ہیں یہ سب فیلڈس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کس بنیاد کے اوپر پولیٹیکل سائنس کو سب فیلڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سو دا نمبر فرسٹ، بیکاز پولیٹیکل سائنس از ایکسپینڈنگ اینڈ ناؤ اٹ ہیز واسٹ اسکوپ. دیکھیے پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ جو ہے، پولیٹیکل سائنس کی سبجیکٹ میٹر، پولیٹیکل سائنس کی ایریاز، ٹھیک ہے، وہ بہت ایکسپینڈ ہوتے جا رہے ہیں. دیٹس وائی پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ جو ہے اب وہ ایک واسٹ اسکوپ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی دا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس اور دا ڈسپلن پولیٹیکل سائنس از ڈیوائڈیڈ انٹو سب مینی فیلڈس بیکاز اٹ از انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ. پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ایک انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ ہے. انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ مینس دیٹ کہ اٹ گیدرز اٹ کلیکٹ دا انفارمیشن فرام ادر سوشل سائنسز. ٹھیک ہے، یہ جو نالج ہے یا انفارمیشن ہے یہ ادر سوشل سائنسز سے کلیکٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس. ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی اٹ از انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ. اور یہاں پر ایک ضرورت پڑی پولیٹیکل سائنس کو سب فیلڈ میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے. ڈیو ٹو ایکسپینشن آف سبجیکٹ اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو سب فیلڈس. وہی بات پر کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کی اسکوپ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، تو دیٹس وائی اس کو سب فیلڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم صرف 3 سب فیلڈ جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. سو دا نمبر فرسٹ از کمپیریٹیو پالیٹکس. ٹھیک ہے، اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ واٹ از کمپیریٹیو پالیٹکس. سو لیٹس ڈیفائن دا کمپیریٹیو پالیٹکس. کمپیریٹیو پالیٹکس از دا اسٹڈی آف ڈومیسٹک پالیٹکس اکراس دا گلوب. کمپیریٹیو پالیٹکس جو ہیں یہ اسٹڈی ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کی اکراس دا گلوب، پوری دنیا میں. یعنی کمپیریٹیو پالیٹکس یہ پولیٹیکل سائنس کے وہ سب فیلڈ ہیں جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس آف کنٹریز. ٹھیک ہے، اکراس دا گلوب، پوری دنیا کے کنٹریز جو ہیں اس کے جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اور اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وی ڈو کمپیریزن آلویز ان سیم تھنگ. ٹھیک ہے، اور وہ چیزوں کے درمیان ہم کمپیریزن کرتے ہیں جس کا نیچر سیم ہو. اب کمپیریٹیو پالیٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کمپیریٹیو پالیٹکس وی کمپیئر دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، گورنمنٹ، پولیٹیکل لائف اینڈ پولیٹیکل کلچر آف ڈفرینٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، پولیٹیکل کلچر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو، دنیا کے گورنمنٹ کو، پولیٹیکل لائف کو اینڈ پولیٹیکل کلچر کو. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ وی ہیو ٹو کمپیئر دا پولیٹیکل کلچر آف پاکستان ود انڈیا، اگر ہم گورنمنٹ سسٹم کو، پریزیڈنشل سسٹم گورنمنٹ جو ہے امریکہ کا ہم کسی دوسری سے کنٹری سے کمپیئر کریں، اس طرح سے پارلیمنٹ کو ہم کمپیئر کریں، مینز دیٹ کہ جو بھی چیزیں ہیں ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کمپیریٹیو پالیٹکس میں، جس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے، پولیٹیکل بیہیویئر کے، پولیٹیکل کلچر کے. یہ وہ سب فیلڈ ہے پولیٹیکل سائنس کا. اور کیوں ہم یہ کرتے ہیں کمپیریزن؟ وائی وی ڈو کمپیریزن؟ ٹھیک ہے، ٹو اڈاپٹ دا بیسٹ سسٹم اور بیسٹ پالیٹکس. ٹھیک ہے، کہ ہم بیسٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کو اڈاپٹ کریں، بیسٹ پالیٹکس جو ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں بندہ جب ایک معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ واٹ از ہیپننگ، لیکن کمپیریزن جو ہے یہ ایک انسان کے فطرتی عمل ہے. جب آپ کسی ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں جائیں، وہاں کے لوگ، کلچر آپ دیکھیں، وہاں کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، تو آپ کا مائنڈ بہت کمپیریزن شروع کرتا ہے کہ ہم تو ایسے کرتے ہیں، یہ لوگ کیسے کرتے ہیں.
same is the case with parliament, same is the case with political system, form of government, bureaucracy, जितने भी institutions हैं लोग वहाँ पर जाते हैं और comparison करते हैं, पर देखते हैं कि इसमें से best system कौन सा है. और comparative politics में हम ये देखते हैं कि what are the forces, ठीक है, which is responsible for the success of any system or failure of any system. हम कंपैरिजन करते हैं कि देखें इंडिया में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है और पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है. पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल है और इंडिया में सक्सेस है. क्यों? हम सेम ही नाइबर हैं, सेम सब कॉन्टिनेंट से हम बिलोंग करते हैं, सेम कॉलोनियल हिस्ट्री हम शेयर करते हैं, ठीक है, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ये करते हैं और इट इज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस. 16 कंपैरेटिव मेथड जो है ये ओल्ड मेथड है एज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है. अरिस्टोटल ने ग्रीक्स में तकरीबन 2500 साल पहले जो 150 स्टेट थे ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन को उसने स्टडी किया था और कंपेयर किया था. तो ये एक ओल्ड मेथड है ये कंपैरिजन करना पॉलिटिकल साइंस में. 16 and 19th century its focus was on European countries and USA. देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अब हम इस सब फील्ड क्यों रखा गया है. 16th century और 19th century के ये जो एरा है इसमें फोकस जो था वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप स्टेट्स पे था. मीन्स दैट कि वो नहीं कि इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करते थे. फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए अमेरिका था. सो अब इन 20th century कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज एक्सपेंडेड. इसकी स्कोप जो है वो एक्सपेंड हो गई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की. ये जो सब फील्ड है क्यों एक्सपेंड हो गई? ड्यू टू बिहेवियरल मोमेंट्स. एक तो ये है कि बिहेवियरल मूवमेंट शुरू हो गई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और बिहेवियरल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में भी हम कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का फोकस था, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फोकस था ना, वो इकोनॉमी से, वो पॉलिटिक्स से, इन चीज़ों से वो शिफ्ट करके वोटिंग बिहेवियर और पॉलिटिकल बिहेवियर को लोगों को स्टडी करने लगे कि ये सिस्टम यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर क्यों नहीं है. तो फिर वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल कल्चर की वजह से होता है. एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी वो जो थी एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज जो हैं वो दे गॉट इंडिपेंडेंस, वो आज़ाद हुए, ठीक है. वो कॉलोनियल पावर जो है उसने उसको आज़ाद किया, ये इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर हो गए. तो फिर ये कंपैरिजन के लिए ये मौजू जगह बन गई कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके में कामयाब है और यहाँ पर क्यों नहीं है. ये चीज़ें जो हैं इसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप जो है वो बहुत वाइड किया और दैट्स वाई पॉलिटिकल साइंस जो है वो इसने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना इसके जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. एंड लास्ट वी कंक्लूड दैट वी कंपेयर पॉलिटिक्स टू चीज आर टू अडॉप्ट द बेस्ट पॉलिटिक्स. हम इसलिए पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं कि हम जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, बेस्ट पॉलिटिक्स हैं, हम उसको अडॉप्ट करें. और ये हम किधर करते हैं? ये सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ये सब कुछ करते हैं. सो द नंबर वन सेकंड जो है सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो है पॉलिटिकल डायनामिक्स. देखिए डायनामिक्स वो होता है जिसमें चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है. जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं, ठीक है. तो पॉलिटिकल डायनामिक्स ये पॉलिटिकल साइंस का वो सब फील्ड है जो कि हम डील करते हैं या जो वो बयान करते हैं, ठीक है, विद डायनामिक फोर्सेस ऑफ पॉलिटिक्स. जो डायनामिक फोर्सेस होते हैं, जो चेंज होते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएशंस आते हैं, जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में होते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं. लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है. अब पॉलिटिकल पार्टीज इसमें तो चेंजेस आती रहती हैं, ये कांस्टेंट तो नहीं होती हैं. प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, एक दिन प्रेशर ग्रुप्स हैं, दूसरे दिन वो नहीं हैं. पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, कि लोगों का ओपिनियन क्या है, हम ये स्टडी करते हैं एटसेट्रा वगैरह. बाद में थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं. इट इज कंसर्न विद इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स. ये चीज़ें जो है ना, प्रेशर ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, पॉलिटिकल बिहेवियर हो गया, ये
सारे क्या है, ये इनफॉर्मल साइड ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और फॉर्मल पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट फॉर्मल साइड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। देयर आर मेनी फोर्सेस विच वर्क इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पर बहुत फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि पॉलिटिक्स में के मैदान में काम करते हैं, लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल एटसेट्रा, ठीक है। ये फोर्सेस हैं जो पॉलिटिक्स के फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल डायनामिक्स सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, लेट्स डिस्कस इट, ठीक है। द कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक इज, ठीक है, हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी एक डायनामिक चीज है, तो यहाँ पर सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं इसमें हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज का ऑरिजिन कैसे हुआ और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, वो लोग जो सेम सोच और सेम नजरिया रखते हो, ठीक है, उसके ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, द ग्रुप्स ऑफ पीपल which has or which influence the legislation or the policies decisions of government, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। तो ये हम इसमें स्टडी करते हैं, जिस तरह लॉबिंग हो गया लेजिस्लेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, हाउ प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन, किस तरह वो लेजिस्लेशन के प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को, पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट को कैसे वो मीन्स दैट के इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरह से इसमें हम पब्लिक ओपिनियन को स्टडी करते हैं, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन मीन्स दैट ओपिनियन हेल्ड बाय पीपल रिगार्ड सम स्पेसिफिक इश्यूज, ठीक है। जब कोई स्पेसिफिक इशू होता है इसके बारे में जो या इसके मुतालिक जो लोगों के ख्यालात होते हैं, जो राय होते हैं, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के कश्मीर इशू है, इस पे पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों का क्या ओपिनियन है, वो उसका क्या राय है, ठीक है, हम ये स्टडी करते हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स में। और ये चेंज भी हो सकती है, इसलिए हम इसको डायनामिक्स में रखते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल एंड वोटिंग बिहेवियर, ठीक है, लोगों का पॉलिटिकल और वोटिंग बिहेवियर हो जो है वो भी चेंज होता है। अब चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले पीपीपी की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, पर मुस्लिम लीग नून की, पर पीटीआई की, अब पता नहीं चलता है, क्योंकि ये जो वोटिंग बिहेवियर है लोगों का ये डायनामिक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये स्टडी करते हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स में। सो ये हमने देख लिया कि जो सेकंड नंबर पे सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो है पॉलिटिकल डायनामिक्स। नंबर थर्ड जो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं, लास्ट है इस लेक्चर का, तो है इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। स्टेट कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, रियासत कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर एक स्टेट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली वो जितना भी तरक्की कर सके वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, ठीक है। द स्टेट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, स्टेट जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर वो इन्हिसार करते हैं। तो दैट्स वाई जो स्टेट है ना वो एलूफ नहीं रह सकते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। सो लेट्स डिफाइन द इंटरनेशनल रिलेशंस, और फिर इसको देखते हैं कि हम सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस, ठीक है, ऑफ बिटवीन एंड अमंग द सॉवरेन स्टेट। ये क्या है, ये रिलेशन है, ये जो ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, बिटवीन दो स्टेट्स के दरमियान या दो से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस होता है सॉवरेन स्टेट का, उसको हम स्टडी करते हैं। और रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया कि स्टेट आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, ठीक है। इट डील्स विद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर स्टेट इन वन हैंड एंड सुपर नेशनल एंटिटीज ऑन अदर हैंड, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो कंट्रीज होते हैं, ठीक है, उसके दरमियान, उसके बीच में से जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, कल्चरल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये हम इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी करते हैं एक साइड पर। और दूसरे साइड पर वही स्टेट का क्या इंटरेक्शन है
सुपर नेशनल एंटिटीज, ठीक है, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, इंटरनेशनल एजेंसीज हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, रीजनल अलायंसेस हो गए, ट्रीटीज हो गए रियासत के दरमियान, ये हम सब इसमें स्टडी करते हैं। पावर पॉलिटिक्स हो गया, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के डोमेन में आता है और ये हम इसमें स्टडी करते हैं। इट आल्सो स्टडी सम स्पेसिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसका जो एक डायरेक्ट कंसर्न होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोल क्या है, पीस कीपिंग में क्या है, इकोनॉमी जो है, जिस तरह आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं। और इट हैज़ बेसिक कंसर्न विद ह्यूमन राइट्स, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, जैसा कि कश्मीर हो गया, फलस्तीन हो गया। तो इन चीज़ों को हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करते हैं और ये सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। और बाकी जो सब फील्ड्स हैं इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।